23 अगस्त 2023 इसरो ने रच दिया है इतिहास और कर दी है मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग। India is the first country in the world to land a spacecraft near the moon's south pole. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि Why is this landing so close to the moon's south pole so significant? हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से रोजेंडर पर। और आज बात करेंगे मून पर इसरो की सॉफ्ट लैंडिंग के बारे में। क्या कुछ रिएक्शंस है जो लोगों के निकल के आए हैं, कुछ खास दो लोग ऐसे हैं जिनके रिएक्शंस मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, और चंद्रयान 3 के बारे में कुछ ऐसी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे जो शायद आपको कहीं और देखने को ना मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था मुझे। मैंने लाइव देखी थी ये चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग थी, और जैसे जैसे भाई साहब वो नीचे आ रहा था, वो जो मैंने 3 मीटर्स पर सेकेंड का वाला एक फैक्टर बताया था कि उससे ज़्यादा वेलोसिटी हुई तो क्रैश लैंड हो सकता है, तो नज़रें सारी की सारी मेरी जितने टाइम भी मैं उसको लाइव को देख रहा था, मेरी वहीं थी कि वो वेलोसिटी जो है वो कम रहे। और भी कई सारे फैक्टर्स थे, तो उस चीज़ को देखने में ऐसे दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। बट फाइनली जब वो लैंड किया तब वो बहुत ही मज़ेदार इवेंट बन गया, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर मज़ा आया था। अब कुछ रिएक्शंस जो हैं वो दो खास लोगों के, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो एक जो हैं वो आदित्य भामरे हैं जो अर्थ एंगर चैनल चलाते हैं, और दूसरे हैं नन अदर देन नीरज मोहन जो कि IIA के मेंबर हैं, डॉक्टर नीरज मोहन। तो IIA से और अर्थ एंगर से दोनों से जानेंगे कि क्या कुछ चंद्रयान 3 के बारे में उन लोगों के एक्सपीरियंस थे। हाय, आई एम आदित्य फ्रॉम अर्थ एंगर। चंद्रयान 3 का सक्सेस काफ़ी ज़्यादा स्पेक्टेकुलर था एंड वो हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि बस कुछ चंद मिनटों में लैंडर की स्पीड को कम करवाना, एंड क्योंकि मून के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता, उसके बावजूद उसकी स्पीड को घटाना एंड फिर उसे सॉफ्ट लैंड करवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, एंड वो हमने सेकेंड अटेम्प्ट में ही अचीव कर लिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, हमने चांद के सबसे टफ जगह साउथ पोल जिसे कंसिडर किया जाता है वहाँ पर लैंड करवाया है, एंड हम वो चीज़ अचीव करने वाली फर्स्ट कंट्री बन चुके हैं। इट इज जस्ट awesome. Hi, Shiva Maurya, aka Rosender, and all your viewers. My name is Neeraj Mohan Ramanujam, and I work at the Indian Institute of Astrophysics. We are based in Bangalore, and we run observatories across the country. One of which is at Hanle in Ladakh, and you see a picture of the night sky, the glorious Milky Way, taken from outside the observatory behind me as a wallpaper. You had asked me my reaction of the Chandrayaan 3 moon landing. We had organized a public viewing of the live stream in our auditorium in Bangalore, and it was attended by almost all of our staff, as well as a lot of members of the public, especially young children who have been visiting our campus often. I think I reacted a lot more intensely and emotionally than even I had expected to. I think it was a very moving moment for all of us. We're all there together. We're watching the numbers of the velocity and the altitude come down every minute, and every time it crossed some kind of a threshold, we'll all cheer and shout, and we're all very excited and nervous, but also very tense. And I think when the actual landing happened, of course, the whole room erupted like it did across the country, which I learned later. Right? People started dancing and singing, and not dancing and like hugging each other, congratulating each other, shouting, getting up, and so on. And I became a lot more emotional than I thought I would be. It's kind of the goosebump moment. And what I want to say is that such moments which kind of bring an entire nation together, or entire community together, is usually about something which is about usually sports or something like that, right? I'm not a sports fan, but I'm assuming that's what happens when your team wins a World Cup. I guess, like I said, I'm not a sports fan, but then to have such a moment where, like many journalists have commented, the entire nation comes together, everybody across the world in fact came together in a context that takes us beyond ourselves, right? In the context not only of a great engineering challenge and like that of landing a spacecraft on the moon,
but also in a context which takes us outside our Earth, takes us into the universe, kind of takes us beyond where we are normally in our daily lives. I think that's unique, and I think the feeling that brings us is something all of us have experienced probably for the first time or one of the first few times, and I hope that continues with more such collective events of celebration of India's and the world's journey into space, be it the moon or Venus or the upcoming mission to Enceladus and so on. तो कमाल के एक्सपीरियंसेस जानने के बाद चलिए अब एक बार ये जान लेते हैं कि चंद्रयान 3 का अब आगे काम क्या होने वाला है। तो चंद्रयान 3 काफ़ी सारी रिसर्च जो है वो करने वाला है, डेटा जो है वो कलेक्ट करने वाला है। आगे जो है वो चंद्रयान 3 लैंड होने के बाद किस तरह की रिसर्च करेगा, इसके बारे में डिटेल में आदित्य भामरे आपको बताएंगे। चंद्रयान 3 के सॉफ्ट लैंडिंग के अलावा और भी ऑब्जेक्टिव्स है। सबसे पहले रोवर की मदद से लूनर सरफेस को एक्सप्लोर करना, फिर आता है जो चांद पर क्वेक्स आता है, मून क्वेक्स कहते हैं। जैसे कि अर्थ पर अर्थ क्वेक्स होता है, वैसे जो मून के सरफेस पर मून क्वेक्स आता है उसको एनालाइज करना। फिर उसके बाद मून के सरफेस पर प्रेजेंट मिनरल्स को ढूंढना, एंड ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं जो कि स्मॉल अमाउंट्स के पोर्शन को मेल्ट करेंगे एंड उससे जो गैसेस निकलेगी उससे एनालाइज करके फिर कौन से मिनरल्स प्रेजेंट है, उसके कितने प्रोपोर्शन में है, उस चीज़ को एनालाइज करना। फिर जो चीज़ आपको पता ही होगी कि चांद पर जो पानी प्रेजेंट है बर्फ़ की फॉर्म में, उससे एक्सप्लोर करना। एंड और एक इंटरेस्टिंग चीज़, हमने इस बार नासा के रिफ्लेक्टर्स भेजे थे जिसकी मदद से हम मून एंड अर्थ के बीच में का डिस्टेंस और भी ज़्यादा एक्यूरेसी से मेजर कर पाएंगे। अब चंद्रयान 3 के बारे में तो हमने काफ़ी कुछ जान लिया, अब चलिए जानते हैं आदित्य L1 के बारे में। इस पर एक डिटेल वीडियो और भी आगे आएगी जिसमें डॉक्टर नीरज के काफ़ी सारे इनपुट्स जो हैं वो हम डालेंगे और उसमें जानने की कोशिश करेंगे कि आदित्य L1 एक्चुअल में उस मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है और क्या कुछ उस मिशन में इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग तब तक जानेंगे, पर अभी के लिए हम लोग डॉक्टर नीरज से थोड़ी सी चीज़ें जानते हैं कि क्या आदित्य L1 का मिशन है और इस मिशन का क्या ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए जानते हैं। Now that we're done with the moon, of course, the next target is the sun. We move on fairly quickly, I suppose. The Aditya L1 is a solar space mission. It's going to be launched on 2nd September, which is the end of next week by ISRO, and so we're kind of moving very fast through the solar system, if you may. Aditya L1 is India's first dedicated solar space mission to study the sun, of course, and that's why it's called Aditya. It's called L1 because it's going to be launched to what is called the L1 point, or the first Lagrangian point, which is a point between the Earth and the Sun, but around 1.5 million kilometers from the Earth towards the Sun, right? That's around 1/100th of the distance between the Sun and the Earth. Exactly so. होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और सबके रिएक्शंस जो हैं वो आप लोगों को अच्छे लगे होंगे, और आदित्य L1 और चंद्रयान 3 के बारे में जितनी भी डिटेल्स हम लोगों ने आप लोगों को बताई वो आप लोगों ने एंजॉय की होगी और नोट करके रखी होगी। अगर आप लोग अर्थ एंगर के चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में उनके चैनल का लिंक है, और डॉक्टर नीरज की ईमेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। उनको ईमेल करके अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं डॉक्टर नीरज और आदित्य का, जिन्होंने मेरी रिक्वेस्ट पर अपने वीडियोस जो हैं वो बनाकर हमको सेंड किए और ऑडियंस को काफ़ी सारी नॉलेज दी। तो थैंक यू वेरी मच आप दोनों को भी और ऑडियंस को भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया, लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, रोजेंडर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रॉम रोजेंडर।